ان سے بات چیت کر لیتے ہیں. بہت شکریہ حقانی صاحب جوائن کرنے کے لیے. بیہائنڈ دا سین ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جانب سے کوششیں جاری تھی. بالآخر ایران ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار ہو چکا ہے. ان کے جو فارن منسٹر پاکستان آ رہے ہیں, یہ بتائیں کہ جو دوسری نشست ہے اس سے آپ کو کتنی توقعات ہیں کہ کوئی ایگریمنٹ یا کوئی ایم او یو سائن ہو جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایگریمنٹ یا ایم او یو سائن ہونے کا وقت ابھی آیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ کی یہ دو طرفہ ملاقات ہے. وہ روس بھی جا رہے ہیں, عمان بھی جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ مذاکرات کے دوبارہ آغاز سے براہ راست متعلق چیز ہے. اس میں بات چیت ضرور ہوگی اور ایران یقیناً اپنے جو مطالبات ہیں یا اس کی جو کنسرنز ہیں وہ سامنے رکھے گا پاکستان کے, تاکہ پاکستان انہیں امریکنوں تک پہنچا سکے. اور اگر دونوں پارٹیز رضامند ہوئی تو مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو سکے گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں سے فوری طور پر کوئی نتیجہ نکلے. دیکھیے, یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ اس قسم کے مذاکرات جو ہیں وہ ہمارے ٹی وی شوز کی طرح نہیں ہوتے کہ روز ہونا کچھ اس میں ضروری ہے. ان میں بعض اوقات مہینوں لگ جاتے ہیں اور یہاں بہت سے پیچیدہ معاملات ہیں جن پر بات ہونی ہے. اگر جنگ بندی پر اتفاق قائم رہے تو یہی بہت غنیمت ہوگا. ٹھیک ہے, پاکستان کی کوششوں سے پہلا جو ہے مذاکراتی عمل اسلام آباد میں ہوا, اس سے پہلے ہم نے دیکھا سیز فائر ہوا. اب یہ دوسرا عمل جس کو کہہ لیں کہ چلے وہ آ رہے ہیں, بات چیت ابھی ایک آغاز کہہ لیں, ہوپس ہو کہ دونوں سائڈ دوبارہ سے ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھیں. تو ڈویبل کیا ہوگا جب دونوں سائڈ دوبارہ بیٹھتی ہیں؟ بلاکیڈ کا ختم ہونا یا ایران کے کچھ نہ کچھ ایسے مطالبہ جو مان لیے جائے کہ ایران بھی مذاکرات کی میز پر تھوڑا کمفرٹیبل نظر آ سکے؟ جی, اس میں ایران کی جانب سے تو یہی خواہش ہوگی کہ بلاکیڈ کا خاتمہ ہو. جو عرب ممالک ہیں وہ بھی اس میں ایک فریق ہیں, اگرچہ وہ مذاکرات میں شامل نہیں ہیں, اور اس پر ان میں کافی ناراضگی موجود ہے. ان کا مطالبہ یہ ہوگا کہ ایران یہ کمٹمنٹ دے کہ اگر امریکہ کی اور اس کی دوبارہ لڑائی شروع ہوتی بھی ہے تو وہ ان ممالک پر حملہ نہیں کرے گا جو اپنی بیسز استعمال نہیں ہونے دے رہے ایران کے اوپر حملوں کے لیے. تیسرا جو ڈیلیوربل ہو سکتا ہے وہ ایران کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں کچھ لچک پیدا کرے اور اس میں جو اس نے رکاوٹیں ڈالی ہیں یا مشکلات پیدا کی ہیں وہ ان کو ختم کرے. ٹھیک ہے حقان صاحب, جو بلاکیڈ ہے, ٹرمپ نے ملٹری وارفیئر کے بعد اکنامک وارفیئر جو ہے اس کا ایک آپشن استعمال کیا. ابھی تک کیا لگتا ہے آپ کو, کیا وہ ورک ہوا؟ کیا ایران کے اوپر کچھ پریشر پڑا؟ جو امریکن کی جو ایک پوری پلاننگ تھی وہ ورک کی اس پوری صورتحال میں؟ دیکھیں, جو بلاکیڈز ہوتے ہیں یا معاشی پابندیاں ہوتی ہیں, ان کے اثرات آتے آتے وقت لگتا ہے. کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے پاس بالکل بھی اپنے لیے کوئی گنجائش نہ ہو کچھ عرصے تک بغیر درآمدات کے چلنے کی. ایران کو فوری طور کے اوپر غذائی اشیاء کی درآمد کی ضرورت نہیں ہوتی. اسے تیل کی مشکلات ہوں گی کیونکہ جو پروسیس تیل ہے, جو استعمال ہونے والا تیل ہے, جیٹ فیول وغیرہ, یہ بہرحال اس کی جو آمد و رفت ہے اس کے اوپر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. لیکن اس کے علاوہ گزارا ان کا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. دوسری بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایران میں ایسی حکومت نہیں ہے کہ جس کو یہ فکر رہتی ہو کہ عوام پر کیا گزر رہی ہے. یہ حکومت تو خود اپنے عوام کے اوپر بھی بہت تشدد کرتی رہی ہے, بہت زیادہ زیادتی کرتی رہی ہے. یہ ایک نظریاتی حکومت ہے اور وہ اپنے نظریے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ اثرات کیا ہوتے ہیں. کچھ قربانیاں دے کر وہ لوگوں کو کہیں گے کہ ابھی کچھ اور عرصے تک چلو. تو اس لیے فوری طور پر ان معاشی پابندیوں کا اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹرمپ حقیقت سے کتنے دور آپ کو نظر آتے ہیں؟ ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ خود وہ وکٹری اناؤنسمنٹ کریں اور آن دا ادر سائڈ ایران جو ہے وہ اپنی ہار بھی تسلیم کرے. کیا یہ ممکن ہو پائے گا جو ٹرمپ کی بظاہر اس ٹائم ڈیزائر نظر آتی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ دونوں کی جو یہ خواہش ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ وہ جیت گئے اور دوسرا ہار گیا, یہ ممکن نہیں ہوگا. دونوں کو اگر جو مچور ممالک ہوتے ہیں ان کی طرح بات چیت کرنی ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا ہوا کہ ہم نے دونوں نے کچھ سمجھوتے کیے ہیں, ہم نے دونوں نے کچھ باتیں کی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم نے جنگ کو ٹال دیا ہے. اور یہ خواہش کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جنگ جیتی ہے اور اس کے بعد یہ اتفاق ہوا ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ آسان ہو سکے گا. اس کی ایک تاریخی مثال بھی ہے. 1965 کی جنگ کے بعد اعلان تاشقند ہوا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان. پاکستان اس وقت تک اپنے عوام کو یہ باور کراتا رہا کہ ہم نے جنگ جیتی ہے. بھارت
दूसरी तरफ ये कहता रहा कि हमने भी कामयाबी हासिल की है। जो मुआहिदा हुआ था उसमें दोनों ने इत्तेफाक ये किया कि जो जंग से पहले दोनों की फौजें जिस मकाम पे थी वहीं वापस चली जाएंगी, और उसकी वजह से दोनों तरफ कुछ ना कुछ बेचैनी पैदा हुई कि आखिर हुआ क्या। हम तो समझे थे कि हम जंग जीत चुके हैं। तो वही कैफियत अब भी होने वाली है। जो ट्रंप के रहे सहे साथी हैं अमेरिका में, वो समझते हैं हम जीत रहे हैं। उनको ये समझना पड़ेगा कि रियायत और मराहत क्यों देनी पड़ी ईरान को अपने अवाम को ये बावर कराना पड़ेगा कि उन्हें अमेरिका की बातें क्यों माननी पड़ी। लेकिन अगर दोनों ने एक दूसरे की कुछ बातें ना मानी तो फिर इत्तेफाक राय मुश्किल होगा। ठीक है, गिव एंड टेक जो है दोनों साइड से करना होगा। ट्रंप को हम सुन रहे थे, वो फरमा रहे थे कि जनाब ऐसा एक एग्रीमेंट चाहते हैं जो लंबा अरसा चले। जो 2015 का एग्रीमेंट है उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, उन्होंने उसको ख़त्म भी किया था। तो किस नोयत का एग्रीमेंट हो सकता है जिस पर दोनों जानिब जो है वो अपनी अपनी ऑडियंस को भी खुश कर सकें और आसाम अपनी जो विक्ट्री है वो भी अनाउंस कर सकें, अमेरिकन भी और ईरानी भी? देखिए, ईरान तो ये चाहता है कि एटमी मसले के ऊपर उसका मौक़िफ़ ये माना जाए कि उसको एनरिचमेंट का हक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हक फौरी तौर पर इस्तेमाल करे और वो चंद साल के लिए उसको मुलतवी करने के लिए तैयार है। 215 के माहिदे में 15 साल की मियाद तय हुई थी। अगर वो माहिदा खत्म न किया गया होता तो 2030 में दोबारा ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता था। तो ईरान ये कहेगा कि अब हमें बहुत कम साल मजीद चाहिए जिसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। अमेरिका चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सालों की पाबंदी लगाई जाए। ट्रंप क्योंकि आदाद शुमार को खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो चाहेंगे कि वो ये कहें कि ओबामा ने 15 साल की पाबंदी लगवाई थी, मैंने 20 की लगवा दी, 30 की लगवा दी। तो इस तरीके से बार्गेनिंग होकर कोई एक मियाद तय हो सकेगी एटमी मसले पर। अब जो मसाइल हैं, आबनाए हुर्मुज़ का खुला रखना, इसके ऊपर समझौता होने को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस जंग से पहले तो आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई थी। और दूसरी तरफ रह गया मामला इस यकीन दहानी का कि अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला नहीं करेगा, तो वो तो उसको मुआहिदे की बुनियाद बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, जो मुआशी पाबंदियां हैं उसका उठना ईरान के लिए कितना अहमियत का हामिल होगा? क्योंकि देख रहे हैं कि इंटरनल बहुत सा प्रेशर माजी में देखा, किस तरह वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह भी होते रहे हैं। अब जर्मन चांसलर भी फरमा रहे हैं कि ईरान पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं उनको उठाया जा सकता है। क्या अमेरिका भी जो मुआशी जो पाबंदियां खसूसन वो उठा सकता है? बिल्कुल उठा सकता है, और पिछली बार भी यही हुआ था। 2015 के मुआहदे में भी बहुत सी पाबंदियां हटाई गई थी और ईरान को कई बिलियन डॉलर मिले थे। ये बदकिस्मती है कि ईरान की क़यादत ने भी उसमें गलती की कि वो बिलियन डॉलर जब उसके कई बिलियन डॉलर जब आने शुरू हुए तो ईरान ने जो उसके प्रॉक्सीज हैं मशरिक़ वस्ता में हिजबुल्लाह है, यमन के हुती हैं, दूसरे ऐसे गिरोह हैं, उनकी मदद जारी रखी और बड़े खुल के जारी रखी। अगर वो थोड़ा सा उसमें इख्वा रखते, थोड़ी सी रियायत रखते, तो कहने को होता कि उन्होंने वो पैसा अपने अवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल किया, उन्होंने उसको अपनी फौजी ताकत और अपनी प्रॉक्सी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। तो इस बार शायद अमेरिका ये इसरार करे कि ये यकीन दहानी कराई जाए कि पैसे आपको इस शर्त पे मिलेंगे कि अगर हमें लगा कि वो आपने दोबारा वो काम शुरू किए हैं जिनकी वजह से हम पहले भी परेशान हुए थे, तो फिर वो पैसे आपको आने बंद हो जाएंगे। लेकिन माशी पाबंदियों का खात्मा ईरान के नुक्ते नजर से सबसे अहम है। ठीक है, आप ईरानी क़यादत और उनकी फैसला साजी के हवाले से बात करें। ट्रंप ये शिकवा करते नजर आते हैं कि मौजूदा जो वहाँ पर रजीम है उसका कोई कंट्रोल नहीं है, एक कंसेंसस नहीं है, एक वैक्यूम है वहाँ पर लीडरशिप का। ये जो हमने देखा कि माजी में भी एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की जाती रही है विद इन ईरान, क्या ये दोबारा से उसी को अटेम्प्ट किया जा रहा है, वही अटेम्प्ट दोबारा से दोहराई जा रही है कि वाकई विद इन ईरान जो क़यादत के हवाले से कुछ मसाइल का सामना है उन्हें? देखिए, क़यादत का कोई ऐसा मसला तो मुझे नजर नहीं आ रहा है ईरान में। असल मसला तो यह है कि जब क़यादत के बहुत सारे अफराद की जान को मुसलसल खतरा हो, इस बात का इम्कान हो कि उन्हें मिसाइल से मार दिया जाएगा, तो फिर लोगों की मीटिंग्स वगैरह जरा कम हो सकती हैं। तो इसलिए हर पैगाम इनफरादी तौर पर हर एक को पहुंचा के उसकी राय मालूम करके फिर फैसले करने होते हैं। वो एक अमल तो जरूर है मुश्किल का, लेकिन को इतना बड़ा इख्तलाफ के जिसके नतीजे में ईरानी क़यादत फैसले ही ना कर पा रही हो, ये मुझे नजर नहीं आता। इस वजह से कि ये जो निज़ाम होते हैं जिनको टोटलिटेरियन सिस्टम कहा जाता है, जिनमें तमाम ताकत जो है वो एक नुक्ते पर मरकूज होती है और एक नजरिए की बुनियाद के ऊपर लोगों को उस निज़ाम का हिस्सा बनाया गया होता है, उसमें ऐसा कम ही होता है कि इख्तलाफात इतने बड़े हों कि फैसले ना हो सकें। ठीक है सर, अब अमेरिका के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सियासी निज़ाम है, उसको बड़े अच्छे से समझते हैं। मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है, ट्रंप गैर मकबूल हो रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में क्या ट्रंप इस जंग को मजीद तवालत दे सकते हैं, इस जंग को मजीद लंबा कर सकते हैं?
लेकिन ट्रंप एक इस एतबार से अनप्रिडिक्टेबल शख्सियत के मालिक हैं, सीमा भी शख्सियत है उनकी, और यकीन से उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो गलत बयानी भी बहुत करते हैं, साफ सीधे तरीके के साथ झूठ बोल जाते हैं, सफेद को स्याह और स्याह को सफेद कह देते हैं। तो इसलिए ये तो मुमकिन है कि वो ये कुछ अरसे तक और खेल खेलते चले जाएं, लेकिन उनकी पार्टी की जानिब से उन पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, और अवाम जो है अमेरिका के, वो बहरहाल अब ये चाहते हैं कि ईरान में जंग न की जाए। ठीक है, वो वॉर ऑफ वर्ड्स के तो कह लें कि वो माहिर हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बता दें सर कि ट्रंप चाइना का दौरा करना है, उससे पहले कुछ इस तरह के भी तबसरे हो रहे हैं कि चाइना को प्रेशराइज करने के लिए पूरा जो अमेरिका ने ये इस टाइम को चुना, और उनके दौरे से पहले ही पूरी मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, चाइना का जो एनर्जी का पूरा सेक्टर है उसको डैमेज करने की कोशिश हुई। 80 to 19% जो है एनर्जी, वो पेट्रोलियम मसनूआत वो ईरान से हासिल करता है। तो जाने से पहले ये सारी की सारी चीज़ें ट्रंप की जानब से की गई, और इसको वो मजीद टाइम टेक करेंगे जाने से पहले। मुमकिन है कि उनके मकासद ऐसे हों, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि चीन आसानी से दबाव में नहीं आता। हर मुल्क का अपना एक मिजाज होता है, अमेरिका भी आसानी से दबाव में नहीं आता, और इसी वजह से कई कई साल जंगें उसने जारी रखी हैं, जबकि बहुत पहले ये वाज़े हो चुका था कि उस जंग में उसको वो मकासद हासिल नहीं होंगे जिनके लिए वो जंग लड़ने गया। वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, उनमें वो ज़रूरत से ज़्यादा ठहरा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हमें आसानी के साथ भगाया नहीं जा सकता। जब अमेरिका का ये मिजाज हो सकता है, तो चीन का ऐसा मिजाज क्यों नहीं होगा कि चीन दबाव में फैसले ना करे। मेरा नहीं ख्याल ये ट्रंप की शख्सियत है कि वो बुली करके दबा के हर एक से फैसला कराना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए कोई कामयाब हिकमत अमली साबित नहीं होगी। ठीक है, अगर से पाकिस्तान की कोशिशें आपने देखी, और आप खुद भी अमेरिका में बतौर पाकिस्तानी सफ़ीर जो सर्व कर चुके हैं, मुज़ाकरात पाकिस्तान दोनों अफ्रीकैन को जो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर मौजूद थे उसकी टेबल मेज़ पर ले आया, लेकिन उसके बाद जब इसमें एक तातुल आया तो एक क्रिटिसिज्म पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ा। मतलब अगर पीस हो गया तो दुनिया ओके, अमन हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये मामला सबूताज होते नहीं आगे बढ़ पाते तो इसका सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान पर आ पड़ेगा।